Good morning, students. Today we will do some exercise question. Question number 5. Question number 5 is given. You have to find the maximum number of digits to be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 by 17. आपको क्या करना है, 1 by 17 को डिवाइड करना है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे कितने कितने नंबर के बाद वो रिपीट हो रहा है वो बताना है आफ्टर हाउ मैनी डिजिट. तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले कर दिया 1 डिवाइड बाई 17 विच इज 0.05882352. तो यहाँ पे 160 कैलकुलेशन है. 17 zeros are 0, then 10, then again 0, 100, 17 5 is 85, then 17 8 is 136, again 17 8 is 136, 17 2 is 34, 3 is 51, 5 is 85, and 2 is 34. Now the remainder is 160. So we have to take 9s. What is 17 nines? 17 nines are 153. Then we have to subtract. You will get 160 minus 153, 7, 70. Then we have to take 17 fours are 68. Then remainder is 220. Then again 17 ones are 17. Then the remainder is 330. Then again 17 ones are 17. So you will get 30 minus 17, 13. Then 0, 130. Then we have to take 17 sevens are 119. Then we have 130 minus 119 equal to 100. 130 minus 119 equal to 11 and 110. So 7. Then we have to take 17 6. 17 6 are 102. Then we have to subtract 110 minus 102, 8. Then 0, 80. Then we have to take 17 fours are, which is 68. 80 minus 68 is 12. Then 0. Then we have to take 17 sevens are. What is 17 sevens are? 119. 17 sevens are 119. 119. After subtracting 120 minus 119, you will get 1. 1 is the remainder. So again you are getting 1. तो मैंने जैसे कि मैंने पहले बताया था फॉर दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यू हैव टू स्टॉप व्हेन द रिमाइंडर यू आर गेटिंग सेम. यहाँ पे जैसा 1 है तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 1 ही था. इफ यू पुट अगेन यू विल पुट 0, देन सेम प्रोसीजर विल स्टार्ट. सो वी हैव यू हैव टू काउंट द नंबर और यहाँ पे स्टॉप करना है बिकॉज द रिमाइंडर यू गेट सेम. 1 आ गया तो फिर से ये रिपीट होगा. सो यू हैव टू काउंट आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. दिस इज द क्वेश्चन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So total number of digits कितना है, 16 digits. तो 16 digits के बाद ये क्या होगा, रिपीट होगा same 16 digit again. So this is dot dot. Dot dot means this will become bar. You can remove dot. So this 16 digit will repeat again and again. Okay, so what is the answer? Answer is 16 digit. Next we will come to question number 6. Question number 6. What is given? Question number 6. You have to tell whether what property Q must satisfy if the given example of rational number in the form of P by Q where P and Q are integers with no common factor other than 1. So here it is given. आपको क्या बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा जिसमें Q आके क्या होगा, आपको क्या बताना है कि जैसे कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, विल ऑकर व्हेन डिनोमिनेटर क्यू ऑफ रैशनल नंबर p बाई क्यू इज आइदर ऑफ 2 4 5 8 10 एंड सो ऑन. अगर कोई भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 5 से 8 से 10, सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विल बिकम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. क्योंकि अगर आप 2 से भी डिवाइड करोगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 होगा. करके देख लीजिए. 4 से भी करने से क्या होगा, टर्मिनेट होगा, रिमाइंडर 0. देन फॉर 5 ऑल्सो रिमाइंडर 0, 8 एंड 10 ऑल्सो रिमाइंडर 0. So this type of decimal expansion where the denominator is 2, 4, 5, 8 or 10, that type of decimal expansion will be terminating decimal expansion. तो ये कब occur होगा, जब denominator ये होगा. तो therefore prime factorization of the denominator, जैसे कि वहाँ पे पूछा क्यों क्या प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, जो नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इट शुड बी पावर ऑफ 2 और 5. या तो 2 का पावर होना चाहिए या तो 5 का पावर होना चाहिए या दोनों. अगर 2 का भी होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, 5 का भी होगा तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, या तो फिर दोनों का होना 2 और 5 का.
Then coming to the 8th question, you have to find 3 irrational number between 5/7 and 9/11. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5/7 को डिवाइड करना है. So you will get 0.714285 bar, and then for 9/11 0.81 bar. अभी इन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, irrational number लिखना है. So you will get three irrational number between 5/7 and 9/11, क्योंकि मैंने अभी डिवाइड कर दिया तो ये. तो जस्ट इसमें ये दोनों के बीच में इन्फिनेटली मैनी इरेशनल नंबर, यू विल गेट इन्फिनेटली मैनी इरेशनल नंबर, बट वी हैव टू राइट ओनली 3. तो आपको क्या करना है, सिंपल 0.71 है, फर्स्ट 2 डिजिट देखो 71, तो 71 के बाद क्या आएगा 72. सो यू हैव टू राइट 0.720, देन यू हैव टू राइट 7, देन अगेन 72, देन 00, देन 72 000 डॉट डॉट. ऐसे कंटिन्यू करोगे तो देन यू विल कम 7240. Like this, for after 0.72 you can write 73, then 073 0073 000, then 3 rational number. Next one will be 74, or you can write 75 also. It should be less than 0.81 and greater than 0.71. So this will become 0.74 00. So these are the 3 irrational number between 5/7 and 9/11. तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है, फिर इसको डिवाइड करना है, दोनों के बीच का 3 इरेशनल नंबर पूछे. सो यू हैव टू राइट 3 इरेशनल नंबर. वैसे तो दोनों के बीच में इन्फिनेटली मैनी इरेशनल नंबर यू विल गेट. देन कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, 9th वन. 9th क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल. आपको क्या करना है, कुछ नंबर यहाँ पे दिए, आपको बताना है कि इरेशनल है कि रैशनल है. जैसे कि √23 क्या प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं होगा, इट इज ऑल्सो नॉट स्क्वायर नंबर. सो रूट और रूट है उसके ऊपर, सो इट विल बी इरेशनल नंबर. देन √225, वी नो 15 इज द स्क्वायर, 15 इज स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. 15 इंटू 15 इज 225. तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 15 निकल जाएगा. सो 15 इज रैशनल नंबर बिकॉज 15/1 इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. सो इट इज रैशनल नंबर. जहाँ पे रूट होगा वो इरेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे भी रूट है, लेकिन 225 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 15. तो अभी 15 जब हो गया तो ये क्या बन गया, रैशनल नंबर. देन फॉर थर्ड वन 0.3796. 6 के बाद देखो कोई भी डॉट नहीं है, ना तो ऊपर बार भी नहीं है. अगर डॉट डॉट होता तो भी वो क्या होता, रैशनल नंबर होता. अगर ये सेम डिजिट रिपीट होता और अगर बार भी होता तो भी क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, टर्मिनेट. लेकिन यहाँ पे पूछा कि रैशनल है कि इरेशनल है, बिकॉज इट टर्मिनेट्स आफ्टर 6, सो इट इज रैशनल नंबर. देन फॉर फोर्थ वन 7.4784, जैसे कि मैंने बताया बार अगर होगा तो यहाँ पे 478 क्या होता है, रिपीट हो रहा है देखो 478, देन 478, सो इट विल रिपीट. सो इट इज 7.478 बार. जैसे कि हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर. यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में पूछे रैशनल और इरेशनल बताना, आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना. ओनली यू हैव टू टेल वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल. सो इट इज रैशनल नंबर. लास्ट वन इज 1.1. से देखो यहाँ पे सारे नंबर डिफरेंट है, सब नंबर डिफरेंट है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, सेम नंबर. तो ये क्या हो गया आपका इरेशनल नंबर. ओके.